This is a line graph class basically, but today I'll be touching the basics of all types of graph writing and vocabulary of time graphs. So time graphs are the graphs in which there is more than one time given. So you have to use typical vocabulary which you must know. That can be seen in, of course, in all line graphs. 99% of the line graphs are time graphs. Then there are column graphs which are also time graphs which have more than 1 year. Pie charts also have times, and even the tables. So in a way, this vocabulary, what the class of today will be helpful in writing line graph, pie chart, table, and bar graph. Okay, and of course the mixed graphs. Leave aside the process and the map, all other types of graphs, this vocabulary will help you. All right. Sorry. These are the types of graphs that can be seen: line graph, bar chart, pie chart, table, multiple charts, process or cycle, describing objects, and map. Okay, all these types can be seen. Okay, so line graph vocabulary is also called the time graph vocabulary. Then you also need to know the percentage vocabulary, which is more helpful in the pie charts. You also need to know the vocabulary of processes and vocabulary of maps, which will be dealt with in other classes. So here I'm going to talk about the line graph vocabulary, or the time graph vocabulary, you can say. Okay. So how to write a graph: 1 sentence introduction, then 2 sentence overview, which is the gist. Okay. And the body. Body should be ideally 2 paragraphs, but maybe sometimes 3 or 1. That is okay. There is no hard and fast rule as to how many paragraphs should be there in the body. Okay. Now we come to the line or time graph vocabulary. Okay. Basically, abhi line ko maan ke chalo, but then you can apply this vocabulary in the other graphs also, in which there is time given. Okay. Now, whenever a line is going down, to go down, what all words we can use? Decreased, fell, dropped, declined, came down. This is the vocabulary you can use for something coming down. For example, sales decreased, sales fell, the sales of laptops dropped, or the aid given by USA came down. Okay? But this vocabulary can only come, this vocabulary, see this arrow, can you see this arrow? Okay, so if there is one time here and one time here, only then decreased can come. Supposing एक ही दिन में कुछ दिया हुआ है, only one year है या कुछ एक ही है, तो उसमें आपको उस एक डॉट में आप एरो बना सकते हो. Supposing 1980 है ग्राफ, उसमें कोई 1990 2000 नहीं है, तो 1980 को आप डॉट की तरह रिप्रेजेंट करोगे, 1990 कहीं दूर जाएगा तभी तो एरो बनेगी. समझ आ रही है ये बात? Yes, अगर हमें एक ही ईयर दिया है तो हम ये वाली वर्ड्स नहीं यूज कर सकते. डिक्रीज्ड, फेल, ड्रॉप्ड, डिक्लाइंड, केम डाउन. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू. एक ही ईयर दिया होता है और जैसे 2 बार कॉलम ग्राफ है तो एक कॉलम लंबा है दूसरा छोटा है, पर वो डिफरेंट किसी और चीज के लिए छोटा है, तो उसमें दे विल से डिक्रीज्ड. Decreased can only be used if there are two times. Could you say that again? Sorry, I couldn't hear what you said. Oh my God. Decreased can only be used if more than one time is given. Increased, decreased, fell, dropped, or any such vocabulary can only be used when there are 2 different times given, at least 2 or more than 2. Is that clear? Yes, ma'am. I wish to explain it even more. Supposing 2020 में यूएसए ने एड दिए है $30,000 और यूके ने एड दिए $15,000 2020 में, तो यूके की एड कम हो गई कि कम है? कम है. कम है. इंग्लिश विल बी लेस देन, एंड कम हो गई विल बी डिक्रीज्ड. तो यूके की, अगर यूएस ने 30,000 एड दी, यूके ने 20,000 दी, तो यूके की एड डिक्रीज नहीं हुई, इट इज लेस देन. समझ आ गई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Supposing 2010 में यूके ने 20,000 एड दी और 2020 में यूके ने 10,000 एड दी, तो यूके की एड डिक्रीज हुई. अब समझ आई बात? क्योंकि
2010 और 2020 से उसकी एज डिक्रीज हुई. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक ही टाइम में कंपैरिजन करना है. इट विल बी लेस देन, मोर देन. इट कैन नेवर बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड. इज दैट क्लियर? ओके. अब देखो, जब लाइन नीचे जाती है तो उसके लिए ये 5 वर्ड्स आप कर लो. देयर इज नो नीड फॉर मोर वर्ड्स. आपको एक ग्राफ लिखना है एग्जाम में. डू दीज 5 वर्ड्स विद देयर स्पेलिंग्स nicely, and different places use different words in the same graph. Okay, if there is need to use any word twice or thrice, you can use the word decrease, then you can use fell, dropped, declined, came down. Is that clear? Yes, Now, ma'am. now if the line Yes, goes ma'am. up, if the line goes up, then you can use the word increased. The sales increased, the sales rose, the sales climbed, the sales grew, the sales went up, the sales escalated. Okay, so you can do these 6 words for going up. Okay, now if there is no change, if the line is like this, then what will you write? Remained stable. Sales remained stable from this year to this year. The sales leveled off. OFF. Okay, the sales stabilized. The sales remained the same. इस ईयर में और इस ईयर में कोई सेल्स हुई है या कुछ भी है, remained the same. ओके, remained ed के साथ, remained the same. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, was the same and remained the same में क्या फर्क है? What is the difference in was the same and remained the same? Was the same mean वो same थी. Remain the same कि वो same रही होगी. रही. अब देखो, अगर हमने एक ही ईयर में 2020 में यूएस ने 20,000 एड दी और यूके ने 20,000 एड दी, तो उन दोनों की सेल्स वाज द सेम. ठीक है, पर 2010 में यूके ने 20,000 एड दी और 2020 में भी 20,000 एड दी, तो फिर हम क्या बोलेंगे? द एड गिवन बाय यूके रिमेन्ड द सेम. ठीक है, क्योंकि 2 डिफरेंट ईयर्स में उनकी सेम रही, तो रिमेन्ड द सेम. और सेम थी मतलब एक ही साल में किसी और कंट्री ने भी उतनी एड दी, किसी और कंट्री ने भी उतनी एड दी, तो इनकी सेल वाज द सेम. ठीक है, was the same and remained the same. फर्क पता चल गया अच्छे से? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Ma'am, one more time, Yes, please. yes, sure. See, when supposing in 2010, UK gave aid of $10,000 and USA gave aid of $10,000. Then in 2010, the aid given by UK and USA was the same. In 1 year. It was the same thing. Okay, but in 2010, UK gave aid of $10,000, and in 2020, UK again gave aid of only $10,000. तो दोनों years में same aid दी, 2010 में भी और 2020 में भी. The aid given by UK remained the same, उतनी ही रही. Is that Okay, clear, ma'am. Rachi? Yes, ma'am. Okay, so remained the same and was the same, you have to use it nicely. Okay, wherever it is was the same or remained the same, these mean very different things. Okay, then if the line is like this, then you can say fluctuation. The sales fluctuated. Okay, went up, went down, again went up, down. Okay, so you can say the sales showed fluctuations or the sales fluctuated. Okay, if in any line graph you can see a peak like this, sales पहले इतनी हुई फिर एकदम से गिरी, you can say the sales peaked at. Okay, ये peak है ना, चोटी है ना, the sales peaked at $20,000. पर यहाँ पे 4,000 है, यहाँ पे 20 है, फिर 4 हो गई, तो the sales peaked at $4,000 in this year. Is that clear? Yes. Yes, ma'am. The sales reached a low of
this much in this year. अगर नीचे वाली peak है तो reach the low of, सबसे नीचे वाला point है reach the low of, dipped. अब इसमें मैं use कर सकते हो. अच्छा, अब now we have done vocabulary for going up, going down, no change, fluctuation. Now we will do in which way the change is occurring. Supposing the line is going up, but it is going up only very slightly. You can see slightly. So you can say the sales grew slightly. Okay. The sales Okay, ma'am. grew slowly. The sales increased minimally. You can use any word in place of grew. Sales rose slightly, rose slowly, rose minimally, grew slightly, grew slowly, grew minimally, increased slightly, increased slowly, increased minimally, escalated slightly, escalated slowly, escalated minimally. Okay. Went up slightly, went up slowly, went up minimally. Is that clear? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Now, supposing the line goes up like this, very steeply. So this is for sales or something like that. Okay. So you can say the sales grew sharply. The sales increased rapidly. The sales increased dramatically. The sales increased significantly. The sales increased considerably. The sales increased substantially. Do the spellings of all these words very nicely. If you want to use them, don't go wrong with the spellings, right? And is Ma'am, this these much? all- Yes, ma'am, yes. these all words are same, means we can use interchangeably. See, considerably. if supposing the sales is going from $10,000 to $60,000, then you can use the word dramatically, significantly, considerably, substantially, rapidly, sharply. But if the sales is increasing from, yes, these are interchangeable. If the sales is going from $10,000 to $15,000, then slightly, slowly, minimally. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Now, if there is a medium change, it is neither too small nor too big change. Mid, देखो ये बिल्कुल धीरे से ऊपर गई है, हल्की सी ऊपर गई है, ये बहुत ज्यादा ऊपर गई है, ये बीच की है. तो बीच के लिए हम तीन वर्ड्स यूज कर रहे हैं. The sales grew moderately or the sales grew modestly. No third word. Okay. Moderately, modestly. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So basically this graph, this class of line graph vocabulary, this is the first class I prepared when I started teaching way back in 2006-07. And to prepare this class, believe me, I went through around 30-40 books of IELTS, which were there in the market, self-study books. You know, I read all of them in which they had explained about the vocabulary. And then I made a gist of what has to be taught and what not has. You know, in one book, something would be given, in another book, something would be given. There was nothing complete in any one book, which I could just, you know, teach in my classes. So I think this much is clear now. I'll move on, right? Ma'am, Yes. ma'am, now they all are using your book. Yes, I know. They are using my, yeah. No, they are not all. See, the Cambridge people, Pearson people, Longman people, they are not using my book. They are not using my book. They are big shots, you know, they are giants. They're Ma'am, super I am giants. talking about the institutes or centers. Institutes are using because I've made things very simple for them. Na? They don't Yes, have to do all the hard work that I did. Yes, ma'am. They are getting, And- you know, वो हिंदी पंजाबी में कहते हैं पक्की पकाई रोटी. Yes, and they are also not using your name as well. That's okay. What will I do with my name? Okay, that's okay. I don't mind at all. Okay, that is it. Then, you know, we come over to the time phrases. Not very important, but अगर एक ही साल में कुछ बोलना है तो in 2000, in the 21st century, in the first 10 years, for the first 6 months, for 20 years, during the first 6 months, during the first half of the century. तो ये from to, अच्छा ये combination अच्छे, ये याद करने वाले हैं. From के साथ हमेशा to आता है. From September to November, from 2000 to 2005. बच्चे लिख देते between 2000 to 2005, ये गलत हो जाता है. Between के साथ हमेशा क्या आता है? And.
between के साथ हमेशा and, between 2000 and 2005. ओके, फर्स्ट जो भी लाइन का फर्स्ट जहां से आपने लाइन शुरू हो रही है उस टाइम का आपने कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो इन 2000 द सेल्स स्टूड एट. ओके, द सेल्स स्टार्टेड एट, फिनिश्ड एट. लास्ट पॉइंट का लिखना है तो फिनिश्ड एट लिख सकते हो. ओके, अगर किसी डेकेड की बात करनी है हम ऐसे 1980s वगैरह करके लिख सकते हैं, पर इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो मैं अब आपको कराने लगी हूँ, ये ना दो कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें बच्चे बहुत गलती करते हैं और ये बिल्कुल सही लगाना. आप किसी भी ग्राफ में ये जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका ध्यान रखना. डोंट गो ग्रामेटिकली रॉन्ग हियर. सो ये मैंने थोड़ा सा ये लाइंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए ये दो लाइंस निकाली हैं. ये भी मैंने जिस्ट निकाली है इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद. दिस वाज द जिस्ट आई टुक आउट एंड बिलीव मी दीज सेंटेंसेस आर रियली हेल्पफुल व्हेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी ग्राफ. अब जनवरी में सेल्स इतनी है, फेब में हल्की सी ऊपर है. आपको हल्की सी ऊपर दिख रही है? यस मैम. Yes, ma'am. अब इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुअरी sales increased slightly. Slightly. Now how many words are there? From January to February sales increased slightly. 7 words. इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं? ये जो increased slightly है ना, this is increased is the verb and slightly is the adverb. So it is always verb adverb combination. अगर आप slightly increased लिख दोगे तो आपका wrong हो जाएगा grammatically. आप एडवर्ब पहले लिख रहे हो, वर्ब बाद में लिख रहे हो, तो यू विल बी गोइंग रॉन्ग ग्रामेटिकली. इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके. Yes, ma'am. From January to February, sales increased slightly, not slightly increased. Okay, that would be wrong. From January to February, there was a slight increase in sales. अब slight increase is adjective noun. अब ये slightly ly word is adverb. Adverb हमेशा verb के बाद आता है और adjective जो है वो noun के पहले आता है. आपको verb adverb adjective noun पता है कि ये भी बताओ? अभी बता सकती हूँ मैं अगर नहीं पता. मैम बता दो एक बार. These are the parts of speech. Okay, verb, adverb, noun, pronoun, adjective, ये 8 parts of speech होते हैं. These you should all know. इसमें जो verb है ना, हिंदी पंजाबी में इसको क्रिया कहते हैं. आपने क्रिया सुना है? यस मैम. और ये क्रिया विशेषण सुना है? यस मैम. तो verb is क्रिया, doing words are verbs, and क्रिया विशेषण जो किसी verb के बारे में बताता है word, वो adverb होता है. जैसे she dances, dances है verb. she dances, कैसे डांस करती है? she dances beautifully. ओके, अब ब्यूटीफुली किसको एक्सप्लेन कर रहा है? डांसेस को, तो एडवर्ब हो गया. ओके, अब ही इज ए बॉय. बॉय नाउन है, किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. अब बॉय इज ए नाउन. कैसा बॉय है? ही इज ए गुड बॉय. गुड पहले आया ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है. एडजेक्टिव होता है नाम विशेषण, नाम की विशेषता बताने वाला. सो हम कहते हैं ही इज ए गुड बॉय. ठीक है, बॉय, वी डोंट से ही इज ए बॉय गुड, एडजेक्टिव पहले आता है, गुड बॉय, पर एडवर्ब वर्ब के बाद में आता है. इज दैट मच क्लियर? यस मैम. ओके, सो जब भी आपने वर्ब एडवर्ब का सेंटेंस बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुअरी सेल्स इंक्रीज स्लाइटली. अब जनवरी टू फेब्रुअरी की जगह ईयर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और दूसरा सेंटेंस बनेगा another alternative sentence saying the same thing is from January to February there was a slight increase in sales. अब ये 3 वर्ड्स हैं, ये मैं हमेशा 10-15 साल हो गए हैं ये मैं बच्चों को बोलती हूँ, ये 3 वर्ड्स एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन के पहले आएंगे और इन 3 वर्ड्स में से आपने ये एक आया होना है. और हर क्लास में मैं ऐसे बोलती हूँ, हर क्लास में बच्चे इसको खाते हैं फिर थोड़े से, तो मैं उनको बोलती हूँ बेटा ब्रेकफास्ट करके जाना पेपर देने, वहां ए नहीं खाना. अगर एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन है, देयर वाज स्लाइट इंक्रीज इन सेल्स वुड बी वीक सेंटेंस. देयर वाज अ स्लाइट इंक्रीज इन सेल्स. इज दैट क्लियर?
अगर एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन लगाना है ना, उसके पहले देयर वाज है, ये 3 वर्ड्स आएंगे। ठीक है, ओके मैम। Yes, ओके। ma'am. अब ना ये सिर्फ ये 2 सेंटेंस रट लेना और ये आप अपने रफ पेज पे लिख लेना अगर वहां पे लाइन ग्राफ आ जाए तो। इनको बेस बना के जिन बच्चों को सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम है ना, उनके लिए ये 2 सेंटेंसेस दे आर ए बून, दे विल नॉट गो रॉन्ग, ओके, विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनको याद रखना। अब देखो, फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुवरी सेल्स इंक्रीज स्लाइटली, ये सिर्फ 7 वर्ड्स है, पर आपने वहां 7 वर्ड्स का सेंटेंस नहीं लिखना, आपने लंबा लिखना है। तो अब देखो मैं इसको लंबा कैसे करती हूँ। ये 1995 लिखा हुआ है ना, सेल्स ऑफ लैपटॉप्स 1995 लिखा हुआ है ना ग्राफ में। Yes, yes, आप लिखोगे ma'am. in 1995 comma from January to February sales of laptops increased slightly। अब लंबा हो गया सेंटेंस, Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर बेस क्या है सेंटेंस का, यही है। तो अगर आप इतना इतना रट लोगे ना, इसको अप्लाई करोगे, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सही हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अगर अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आप में से एक जना ना फेब्रुवरी टू मार्च के लिए विद द वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन सेंटेंस बनाएगा। रेखा, आर यू देयर? रेखा इज नॉट देयर। ओके, आप में से कौन बनाना चाहता है? Ma'am, could I try? यस, मे आई ट्राई? ओके, यू मे ट्राई। Okay. यस, Okay. From February to March, the sales increased sharply. very good. From February to March sales increased sharp, sales of laptops increased sharply। बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, अब आपने ना increased वर्ड की जगह कोई और वर्ड लगाना है और sharply की जगह भी कोई और वर्ड लगाना है। दीपक, make a sentence। Yes, ma'am. Between February हाँ and between February and March, हाँ the sale हाँ rose हाँ। quickly. क्विकली वर्ड नहीं है, ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली लिख सकते हो, बिकॉज देखो 20 से 100 हो गई एक ही महीने में, 5 गुना होगी, तो ड्रामेटिकली वर्ड यहाँ जचता है। सेल्स रोज ठीक है। ड्रामेटिकली। ठीक है, वेरी गुड। सेम सेंटेंस मुझे एक और स्टूडेंट बना के देगा विद द एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन। जसलीन। फ्रॉम मैम मैम मन में आपको देती हूँ टर्न नेक्स्ट, अभी इनको बनाने दो। जसलीन, कोई कौन स्टूडेंट बना रहा है अभी? मैं नहीं मैं मैम। बता रहा Ma'am, बनाओ। इसको छोड़ देना. हाँ जी, बनाओ चलो। हूँ। फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुवरी। जनवरी टू फेब्रुवरी नहीं, फेब्रुवरी टू मार्च। ओके ओके। हाँ, फ्रॉम फेब्रुवरी टू मार्च हाँ, there was a dramatic increase in sales. वंडरफुल, वेरी गुड। एक आ गया। हाँ, एक आया? एक आ गया। एक आ गया? आया मैम। नहीं मैम, अच्छा, there was a ऐसे बोला मैंने। देयर वाज ए बोला था भी, मेरे को भी यह सुना बोला है। मैम. हाँ, सॉरी मैम, मुझे नहीं सुना। अच्छा, मार्च से अप्रैल का सेंटेंस बनाओ अब। उमंग, वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन के साथ। Okay, ma'am. हाँ, In 1995, from March to April, हम्म, laptop decreased slightly. लैपटॉप डिक्रीज हो गए। Sales Sale of of laptop, laptop. ma'am. सेल्स ऑफ लैपटॉप डिक्रीज स्लाइटली। ऐसी गलतियां भी बच्चे करते हैं। Sales अब of अमेरिका ने एड दी तो फ्रॉम जनवरी टू फेब्रुवरी अमेरिका फेल स्लाइटली। अब अमेरिका थोड़ी फॉल करता है, क्या फॉल किया? एड गिवन Ma'am, may I try? हाँ, May I try, ma'am? श्योर श्योर, यू ट्राई विद द Yes. एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन। From March to April, there was a moderate decrease in the sales of laptop. वेरी गुड, वंडरफुल। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? Yes. Yes ma'am. Yes, Hello, ma'am. ma'am. यस, Ma'am, can we use during the period of March to April or like that?
during the period, during the given century, during the decade, during the year, अगर जनवरी टू दिसंबर का कुछ बोलना है, अब मार्च टू अप्रैल में ड्यूरिंग जची नहीं रहा, फ्रॉम टू बिटवीन एंड बहुत है. You see, ultimately you have to write one graph over there. Yes, ma'am. Okay, 1 month या ड्यूरिंग मार्च, अगर मार्च के अंदर आपने 1st to 31st का बताना है कुछ, फिर ड्यूरिंग जचता है. ड्यूरिंग मार्च टू अप्रैल बिल्कुल गलत है. Okay, ma'am. ओके, Thank you. हाँ. Excuse अब me, मैं ma'am. ना आपको इसकी ये जो वोकेबुलरी है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, आप ऐसा एक टेबल बना लेना अपनी नोटबुक में, और ये देखना अगर आपने इंक्रीज्ड स्लाइटली वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन में कहीं इंक्रीज्ड स्लाइटली है, सेम सेंटेंस आपने एडजेक्टिव नाउन में बनाना है तो क्या बनेगा? स्लाइट इंक्रीज. समझ गए? अच्छा, अब मैं आपको ये नहीं Can दिखाती. we use gradual, like for what scenarios we use gradual? यस, ग्रेजुअल किसी में भी यूज कर सकते हो. ग्रेजुअल इंक्रीजेस, मॉडरेट, ग्रेजुअल, शार्प, ग्रेजुअल मॉडरेट के लिए यूज कर सकते हो. या जिसमें फ्लक्चुएशन ना होए उसमें भी ग्रेजुअल यूज कर सकते हो. Okay, fine. Yeah. है ना, जिसमें फ्लक्चुएशन होए फिर वो ग्रेजुअल नहीं है. Okay. अच्छा, Like, मैं इसको हाइड is कर it, रही हूँ. मैं आपको like- ना आई गिव यू वर्ब एडवर्ब कॉम्बिनेशन, आपने उसका मुझे एडजेक्टिव नाउन बताना है. ठीक है? बजर राउंड है. बजर राउंड पता है क्या होता है? Yeah, ma'am. Okay, now fell slightly. Slightly fell. गलत. Slightly fell. Fell slightly, slightly fell. fall. ये तो आपने उल्टा पुल्टा कर slight. दिया. Slightly fall. Slight fall. Slightly fall. Slight Slight fall. fall. Slight fall. Slight fall. Slight fall. Slight fall. Slight fall ठीक है. Fell slightly का slight fall. अच्छा, अब फिर buzzer round है, मैं बोल रही हूँ. Escalated sharply. Sharp Escalated. Escalate. Sharp escalation. Sharp escalation is correct. Escalated का escalation, sharply का sharp. ठीक है? Sharp escalation. Okay. Grew rapidly. Rapid growth. Rapid Growth. growth. Very good. Okay, very good. Climbed minimally. Minimal climb. Minimal climb. Very good. Very good. Grew substantially. Substantial growth. Substantial growth. Substantial growth. Substantial growth. Very good. I think you have picked up everything. ठीक है? Inclination use करेंगे ना? Inclined पता है क्या होता है? Inclined slope को कहते हैं. Inclined word है ही नहीं ग्रीव के लिए. तभी मैं आपको बोल रही थी, मैंने बच्चों को ये बोला, मैंने ये कई बार बोलती हूँ कि जो मैंने यहाँ वर्ड दिए हैं बस इतने कर लो, एक ग्राफ लिखना है, इसके अलावा और कोई यहाँ पे 6वां वर्ड नहीं आना चाहिए, यहाँ पे 7वां नहीं आना चाहिए, आपकी गलती नहीं होगी. Okay, मैम. ठीक है? मेरे पास बच्चे बहुत, पता है ओवर द इयर्स मैंने क्या क्या फेस करा हुआ है पढ़ाते हुए. किसी और सेंटर में ऐसे कॉपी खोलते मेरे आगे, मैम देखो मेरी सिस्टर ने फलाने सेंटर से किया, इतनी वोकैबुलरी कराई उन्होंने. मैंने कहा उसके बैंड कितने थे राइटिंग में? फिर कहेंगे 5 या 5.5. फिर मैंने कहा आप कम करके चले जाओ, आपके ज्यादा आ जाएंगे बैंड. आप जितनी ज्यादा करते हो ना उतनी कंफ्यूजन करते हो. आपके पास 5 वर्ड्स हैं टू गो डाउन एंड 6 वर्ड्स हैं टू गो अप. व्हाई डिड यू नीड टू यूज द वर्ड इंक्लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल? मैम मतलब टास्क 1 टास्क 2 में मतलब सिंपलिसिटी रखें, मतलब है ना? बिल्कुल सिंपलिसिटी. जितनी सिंपलिसिटी पे फोकस करोगे ना उतनी ग्रामेटिकल एरर्स कम करोगे और उतना ज्यादा आपका वॉइस ऑफ योर हार्ट विल रीच आउट टू द एग्जामिनर. You should be able to tell the examiner what you are willing to say, what you are saying. In forcing vocabulary in your writing, you spoil the whole flow of your writing. You get my point? Yes, ma'am. So it is better to forget about vocabulary, focus on other things, and श्योर शॉर्ट 7.5 तक बच्चों के आए हुए विदाउट इवन. अब ये भी तो वोकैबुलरी है, डिक्रीज्ड, फेल, ड्रॉप्ड. अगर आपने इसी को जगह जगह चेंज करके लिख दिया तो भी तो वोकैबुलरी में काउंट हो रही है ना. व्हाई डू यू नीड वर्ड्स अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स? टेल मी.
एक ग्राफ लिखना है, 150 से 200 वर्ड्स टोटल लिखना है, उसमें इतने वर्ड्स आप लिख लोगे कम है, यही बहुत है। यस मैम। समझ आ रही है ना बात जो मैं कह रही हूँ? इससे ज्यादा Yes. जरूरत ही नहीं है करने, और वर्ड्स हैं पर आपको इतने बहुत है, इनको रोज यूज करो, इनमें एक्सपर्टाइज करो यूज में, यू विल नॉट गो रॉन्ग। ओके, अच्छा एक चीज मैं और बताती हूँ, ये जो फेल स्लाइटली रैपिडली, इसके लिए ना अगर कोई चीज बहुत तेजी से ऊपर गई है ना, उसमें हम 2 वर्ड्स की जगह, जैसे रोज रैपिडली या रोज सब्सटेंशियली, इसकी जगह 1 वर्ड दे सकते हैं। what can be that? The sales soared, SOARED. You can use 1 word, soared from 20 to 100 in 1 month. Grew rapidly की जगह soared word आ गया, SOARED. You can use that word. और अगर 100 से 20 fall कर रहा है कुछ, like fell sharply, उसके लिए 1 word है plummeted, PLUMMETED. The sales plummeted. ठीक है, don't use the second word with it. It means Can you fell repeat? rapidly. Okay, ये आप नोट कर लो, you can use these words apart from that. Okay, soared, SOARED, बहुत तेजी से ऊपर गए, और plummeted, बहुत तेजी से नीचे गिरना। ठीक है, 1 word, Of plummeted. PLUMMETED, plummeted. Thank you, ma'am. ठीक है, SOARED, soared, ऊपर जाना soared, नीचे गिरना plummeted. सोर्ड का कौन सी लाइन के लिए सोर्ड यूज करोगे? ये वाली इन वर्ड्स, पर इसमें दूसरा वर्ड नहीं डलेगा, बस एक ही वर्ड आएगा, इंक्रीज्ड रैपिडली के लिए सोर्ड आ जाएगा। और ये अगर मैं ऐसा एरो बना दूं नीचे को, तो प्लमेटेड, द सेल्स प्लमेटेड। ओके, सिंगल वर्ड। ठीक है, अच्छा परसेंटेज वोकैबुलरी बस इतनी है, ये भी मैं आपको भी करा देती हूँ। परसेंटेज वोकैबुलरी अगर 80% है, पाई चार्ट में ज्यादा काम आती है, पर और ग्राफ्स में भी काम आ सकती है। अगर 80% है तो 100% का 4/5 हो गया ना 80, 5 हिस्से में से 4 हिस्से, 4/5 लिख सकते हो। 4/5 of the people went to the cinema every day, 50%. 75 3/4, 50 is half, 25 is a quarter, 20 is a fifth, 10% is 1 in 10. ओके, अब ये जो परसेंटेज है, अगर 77 है तो 3/4 नहीं है, जस्ट ओवर 3/4 या अप्रोक्सीमेटली 3/4 या नियरली 3/4। 49 है, जस्ट अंडर अ हाफ, अ लिटिल अंडर अ हाफ, नियरली अ हाफ। 32 हो गया, ऑलमोस्ट ए थर्ड। तो ये सारी आपको वोकैबुलरी काम आएगी। So in today's class, basically I have touched the vocabulary of all the types of graphs, time graphs, जिनमें time आता है एक से ज्यादा। ठीक है, अभी we'll be touching 2-3 line graphs, because basically this week we are focusing on the line graphs, and I'll be sharing the line graphs from my book and you will be doing them. ठीक है, आपने वो वीडियो शेयर जो मैंने करा था, did you watch it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, 10 ma'am. Yes, ma'am. video. Okay, 10 sentence video. Okay. वो उसने ना, इंद्रुप ने बहुत क्लियरली बताया कि कहीं एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन ड्रॉ करने के बाद इजी हो जाता है टू राइट। ओके, अब ये वाला ग्राफ देखते हैं। The graph below shows the spending on research into renewable sources of energy in 4 countries between 1975 and 2000. अब ये between and combination question में है। Spending on research into renewable sources of energy, इसका मतलब एक लाइन आप हिंदी की बनाएं इसको समझने के लिए है क्या। अब जैसे ये सबसे ऊपर वाली लाइन है ना, ये स्विट्जरलैंड के लिए है, ये वाली जो डॉट्स है ये डेनमार्क के लिए, ये वाली डैश्ड है ये स्पेन के लिए, और ये सॉलिड लाइन है, दिस इज फॉर यूके। ओके, अब इन्होंने कितनी स्पेंडिंग रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी पे कितनी स्पेंडिंग करी हर कंट्री में, इन्होंने यहाँ पे है $0। तो 1975 में इन चारों कंट्रीज में से किसी कंट्री ने
कोई भी स्पेंडिंग नहीं करी रिसर्च पे, उसके बाद स्पेंडिंग शुरू हुई, समझ गए, रिन्यूएबल सोर्सेस पे। अब यहाँ पे है $, $0, $1, $2, $3। तो अब यहाँ पे अगर ये ग्राफ है तो इसका मतलब उन्होंने ये स्विट्जरलैंड ने $3 खर्चे रिसर्च इनटू रिन्यूएबल सोर्सेस पे। यहाँ पे पढ़ो, डॉलर्स पर पर्सन स्पेंट ऑन रिसर्च। तो अगर आप $3 के साथ पर पर्सन नहीं लिखते तो आपका, आप देखो अगर स्विट्जरलैंड में सपोजिंग, हम सपोजिंग कह रहे हैं 5 लाख जने रहते हैं, तो $3 पर पर्सन खर्चे। अगर आप पर पर्सन नहीं लगाते तो आप कह रहे हो $3 खर्चे, अब पर पर्सन $3 खर्चे तो 15 लाख खर्चे। और $3 में और 15 लाख डॉलर में कितना फर्क हो गया, समझ गए? तो यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट गो रॉन्ग इन द यूनिट्स। इज दैट क्लियर? Yes. So units everywhere, आपको हर जगह यूनिट सही लगाना है, पर पर्सन हैज टू कम, ओके। फिर आपने उसका जो ग्राफ देखा था, अच्छे से देखा था, उसने क्या करा है, अब एक तो 1 सेंटेंस इंट्रो है, द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द रिसर्च एक्सपेंडिचर बाय स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन एंड द यूके। अब कौन कौन सी कंट्रीज के पहले द आना है, और देखो आप ऐसे याद कर लो, किसी के पहले द नहीं आना एक्सेप्ट 7, 8 जो ग्राफ में आती हैं, उनको याद कर लो, और बाकी किसी के पहले द कभी मत लगाना। द US, द UK, द UAE, द मिडल ईस्ट, द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस, द रशियन रिपब्लिक, द चेक रिपब्लिक, बाकी किसी के पहले द नहीं आना। द स्पेन, द डेनमार्क, द स्विट्जरलैंड गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अब ये चीजें हैं जो आपको, ये गलतियां नहीं करनी, आप वोकैबुलरी भूल जाओ, ये गलतियां नहीं करो। 7 बैंड नहीं आए ना, देन यू कम एंड आस्क मी कि नहीं आए, क्यों नहीं आए, ओके। वोकैबुलरी पे सारा ध्यान दे देते हो और ये गलतियां कराते हो, फिर नहीं आते बैंड, ठीक है। इनका ध्यान रखना है। कैपिटलाइजेशन, अब स्विट्जरलैंड लिखा है छोटा डाल दिया, डेनमार्क डी छोटा डाल दिया, तो बैंड कहाँ से आएंगे आप बताओ, ठीक है। फिर कॉमा है, ओवरऑल कॉमा इट, आई कैपिटल कर दिया, कहाँ से बैंड आएंगे, कॉमे के बाद कैपिटल नहीं होता, ठीक है। और ऐसी गलतियां बच्चे कर जाते हैं, ये गलतियां आपने नहीं करनी है, ठीक है मैम। यस, यूके की जगह ब्रिटिश कंट्री लिखे तो फिर? आपको पता है ब्रिटेन में और यूके में फर्क है? हाँ वो तो पता है, बट सम ग्राफ्स में लिखे होते हैं इसलिए। नहीं, आपने जो लिखा वही लिखना, आप ज्यादा उसको चेंज मत करो, ओके। पता है गलती का स्कोप ही मत दो अपने आप को, गॉट इट? यस मैम। Repetition is okay, using a wrong synonym will be more detrimental, ओके मैम। okay? तो ये आप Okay. ध्यान रखना। Yes. I wouldn't use it, I wouldn't care, I wouldn't use words which I'm not sure about and which may go wrong, I wouldn't use. ओके। ओके अब ना हमने इंट्रोडक्शन 1 सेंटेंस की बनानी है, जो टॉपिक में सेंटेंस है उसकी पैराफ्रेजिंग हो, उससे थोड़ा डिफरेंट लगे, ऐसे मत लगे एग्जामिनर को that this student has dittoed the topic sentence, means हिंदी में हम कहते चेपना नहीं है कुछ भी, ओके थोड़ा लगना चाहिए कि कुछ आपने चेंज करा है। द ग्राफ बिलो शोज, द लाइन ग्राफ कंपेयर्स, शोज की जगह, शोज की जगह भी सिर्फ 2 वर्ड यूज करने हैं, कौन से 2? इलस्ट्रेट्स एंड कंपेयर्स, डोंट यूज डिपिक्ट्स, डिनोट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, डोंट यूज दोस वर्ड्स, दे आर ऑल रॉन्ग, ओके सिर्फ 2 वर्ड्स, इलस्ट्रेट्स और कंपेयर्स, ठीक है। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स, ऊपर लिखा है द ग्राफ बिलो शोज, बिलो कोई ग्राफ नहीं है, बिलो हटा दो। द लाइन ग्राफ कंपेयर्स द स्पेंडिंग ऑन रिसर्च, द रिसर्च एक्सपेंडिचर, ओके, into renewable sources
ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैंने बाद में एंड में कर दिया. बाय इन्होंने लिखा है, इन्होंने ऊपर कंट्रीज नहीं लिखी, मैंने कंट्रीज ग्राफ से ले ली. बाय स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन एंड द यूके. उधर बिटवीन एंड कॉम्बिनेशन मैंने फ्रॉम टू कर दिया. तो ये मैंने चेंज करके सेंटेंस बना दिया. इजी है बनाना ऐसे? इजी है कि डिफिकल्ट है? Easy. Okay. Learn easy, practice easy, write easy, get bands easy. Okay. That is it. Bottom line. उसके बाद देखो टू सेंटेंस ओवरव्यू. टू सेंटेंस ओवरव्यू में वन सेंटेंस आपने बनाना है मैक्सिमम मिनिमम का, और वन सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ईयर्स हैं, वन सेंटेंस आपने बनाना है ट्रेंड्स का. ट्रेंड्स होते हैं इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड. ओके. अब मैं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट भी आपको समझा देती हूँ बिकॉज वोकैबुलरी सारी करा रही हूँ और अब हमारे पास अभी टाइम भी है. अगर हमने एडजेक्टिव्स की ना 3 फॉर्म्स होती हैं, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म. ओके. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. आपको थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं पर मैं आपको 3 वर्ड्स बोलती हूँ, आपको उससे समझ आ जाएगा. आपने सबने स्कूल टाइम में गुड, बेटर, बेस्ट रट्टा मारा होगा. गुड, बेटर, बेस्ट. यस मैम. तो अगर हमने किसी एक चीज की क्वालिटी बतानी है तो हम ना एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म यूज करते हैं. हम कहेंगे ही इज ए गुड बॉय. ठीक है. अगर हमने 2 को कंपेयर करना है तो हम बोलेंगे रवि इज बेटर देन मोहन और राम और वो वॉट एवर नेम. आपने 2, ए इज बेटर देन बी. 2 को कंपेयर करना है तो कंपैरेटिव फॉर्म. कंपैरेटिव फॉर्म में हमेशा देन आता है after the er form of the word. Okay. So A is better than B, better than B. Got it? THAN wala than. A is more beautiful than B. यहाँ हम better वाला ER word भी है, ऐसे more वाला भी लगता है, more beautiful. A is beautiful, B is more beautiful than A. ठीक है. अब थर्ड फॉर्म अगर हमने 2 से ज्यादा को कंपेयर करना है तो वी यूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव. सुपरलेटिव इज कंपेयरिंग मोर देन 2. ओके. उसमें आप डालोगे सब उस वर्ड के पहले डालोगे द और फिर द बेस्ट. सी इज द बेस्ट. ए इज गुड, बी इज बेटर देन ए, सी इज द बेस्ट. द बेस्ट के बाद द सी इज द बेस्ट 7 वर्ड का सेंटेंस है. सपोजिंग आप उसके बाद कहते हो सी इज द बेस्ट देन ए एंड बी, तो आपने 7 से कहाँ की छलांग मारी है? नीचे को 5 की. फेल शार्पली, बैंड फेल शार्पली, बैंड स्कोर फेल शार्पली फ्रॉम 7 to 5. ओके. ठीक है. तो आपने सुपरलेटिव के बाद देन नहीं लगाना. समझ गए? देन लगा दिया तो बैंड स्कोर विल फॉल शार्पली. डू यू वांट इट टू फॉल शार्पली? No. No, you don't want it to fall at all. Okay. तो वो then नहीं लगना. आपको कंपैरेटिव सुपरलेटिव क्लियर हो गया? Yes मैम. अच्छा. अब इस ग्राफ में दो मैक्सिमम स्पेंडिंग ऑन रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी करी है स्विट्जरलैंड ने थ्रू आउट द गिवन पीरियड. ठीक है. और मिनिमम करी है यूके ने थ्रू आउट द गिवन पीरियड नहीं है. तो हम क्या लिख सकते हैं? मिनिमम वाज डन बाय द यूके फॉर मेजॉरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड. ऐसे लिख सकते हो, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड. ये स्टेटमेंट बहुत ग्राफ्स में काम आती है तो ये याद कर लेना. अगर कहीं थोड़े से एरिया के लिए किसी और का कम है पर ज्यादातर इसी का कम है तो आप लिख सकते हो ना फॉर मेजॉरिटी ऑफ द गिवन टाइम पीरियड. यस. ठीक है. सो यू कैन राइट लाइक दैट. ठीक है. और कौन कौन सी कंट्री की स्पेंडिंग ऑन रिसर्च इंक्रीज हुई और कौन कौन सी कंट्रीज की डिक्रीज हुई? स्पेन एंड डेनमार्क. स्विट्जरलैंड की और डेनमार्क की इंक्रीज हुई और डिक्रीज तो खैर किसी की भी नहीं हुई. Fluctuate. हाँ, फ्लक्चुएटेड है. Hmm. ठीक है. तो इनकी स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क जो also expenditure by Switzerland and Denmark increased while expenditure by Spanish and British. Okay.
बाय द स्पेनिश एंड ब्रिटिश। आपको ना नेशनैलिटीज भी कर लेनी चाहिए, नेशनैलिटीज भी हेल्प करती है ग्राफ्स लिखने में। आप स्पेन जो स्पेन के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? स्पेनिश। जो डेनमार्क के लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? डेनिश भी बोलते हैं, DANISH, और डेन्स भी बोलते हैं। मैंने यहाँ यूज नहीं करी इसकी जो नेशनैलिटी है, पर अगर आपको स्विट्जरलैंड की क्या होगी? स्विस। द स्विस, SWISS, ठीक है। डेनमार्क की द डेन्स, स्पेन की द स्पेनिश, और उनके उसके पहले द आता है नेशनैलिटी के पहले। द UK, द ब्रिटिश, ठीक है। By the Spanish and British fluctuated. अब यहाँ पे आपको मैंने आज आपके इस एक ग्राफ में आपको नेशनैलिटीज की भी इंपॉर्टेंस बता दी, ठीक है। Is that clear? Yes, ma'am. Yes. Now how you write the two body paragraphs? Two body paragraphs. Yes. आप ऐसे करो, yes, looking at the graph in more detail, या पिकअप कर लो ये वाले 7 वर्ड आप हर ग्राफ में लिख सकते हो जब ग्राफ को लिखना शुरू करो। तो 1975 में none of the countries spent any money on research into renewables. However, in the next 5 years, ये 5 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी उसने। आपने वो वीडियो देखा है ना, उसमें उसने समझाया कि एक लाइन ड्रॉ कर दो कहीं पे भी। आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, वहां तक की फिर 1-2 सेंटेंस बना के फिर आगे के अलग से, फिर ऐसे ना कंपैरिजन की लैंग्वेज ज्यादा यूज करने का मौका आ जाता है। सो इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. However, in the next 5 years, spending by all the countries increased and reached around $2 for Switzerland, okay, and $1 for the remaining 3 countries. इसकी $2 पे पहुंच गई, बाकी तीनों की 1 पे पहुंच गई पर पर्सन। यहाँ देखो पर पर्सन मिसिंग है, ओके। ये सिंबल होता है पर का, स्लैश, ठीक है, फॉर द रिमेनिंग 3 countries. Okay, is that clear? Yes. And another thing which I forgot to speak out is that in the overview, there should be no data. Years data नहीं होते, बाकी कोई data नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाओ आफ्टर 1980। मैम, हाँ जी। ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बाद लिखना है कि लास्ट में? ये डाउट आजकल ना पता है हमने क्या रियलाइज करा है, ये 4-5 साल ही हुए हैं, अभी हमें 3-4 साल हुए चेंज करे ये पैटर्न। पहले मैं भी एंड में लिखती थी, अब मैं शुरू में लिखने लगी हूँ, बिकॉज ओवरव्यू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ। और अगर आपने ओवरव्यू में एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लिया ना, बिलीव मी आपके अच्छे बैंड जाएंगे ही जाएंगे। और ये ओवरव्यू लिखने की हमने हर तरह के ग्राफ की जिस्ट निकाली हुई है। मैप में कैसे लिखना है, प्रोसेस में कैसे लिखना है, ऐसे ग्राफ में कैसे लिखना है, टाइम ग्राफ में कैसे लिखना है, जिसमें एक ही ईयर है उसमें कैसे लिखना है। ये आप प्रैक्टिस करो अच्छा लिखने की। इफ योर ओवरव्यू इज गुड, यू हैव इम्प्रेस्ड द एग्जामिनर। और ये ऊपर ही लिखना, ठीक है। अब अगर आपने ओवरव्यू अच्छा लिख दिया, इसमें कंपैरिजन के वर्ड्स आ गए, मैक्सिमम आ गया, इंक्रीज डिक्रीज आ गया, अब आपको सिर्फ डेटा डालना है 2 पैराग्राफ्स में और आपका ग्राफ डन है। व्हेन वी स्टार्टेड पुटिंग द ओवरव्यू जस्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन, my students could complete the graph instead of 20 minutes, they could complete it in 16 minutes, 17 minutes. We tried it for many months, we tried it in the classroom. ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। एंड में लिखना गलत नहीं है, बट ऐसे लिखना इजियर भी है और मोर स्कोरिंग है, ठीक है। Then we say after 1980 the spending by Switzerland increased further. अब after 1980 हमने ना इन सबके यहाँ तक के हमने स्टेटमेंट बना देनी है सबकी। After 1980 the spending by Switzerland increased further and stood at $5 per person in 2000. अब सीधा हमने यहाँ की फिगर के बाद ये फिगर दे दी, स्विट्जरलैंड का हमने खत्म कर दिया काम। उसके बाद हमने लिखा by contrast the outlay by
आउटले बाय फॉर स्पेन लिख सकते हो, द फिगर्स फॉर स्पेन लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये वोकैबुलरी देने के लिए ऐसे लिखा है, दोनों चीजें दी है। द आउटले बाय और द फिगर्स फॉर स्पेन एंड द यूके फ्लक्चुएटेड या वेरिड बिटवीन 0 एंड $1। ये देखो 0 और ये 1 है, इसके अंदर अंदर ही फ्लक्चुएशन हुई है ना, 0 एंड $1 पर पर्सन। ठीक है, पर Yes. पर्सन। हाँ, till 2000. Finally, the Danish expenditure remained stable till 1990. But after that, but से मैं अब मना करती हूँ सेंटेंस शुरू करने का, so I will put it however. However, after that it rose sharply and reached $3.5 per person in 2000, which was about $1.5 less than Switzerland. ठीक है, यहाँ पे भी मैं per person डालूंगी, less than Switzerland. So this is about this graph. I hope it is clear. Yes. Yes, Line ma'am. graph clear हो गया? Yes. चलो अब हम कल मैम मिलते हैं। इसमें हाँ, मैम इसके बॉडी पैराग्राफ कैसे डिवाइड करें इस मतलब एक देखो फर्स्ट मैंने पीरियड। आप वो वीडियो देखना जो कल मैंने शेयर करा है लाइन ग्राफ का, उसमें बहुत क्लियर वही फॉलो इसमें करा हुआ है। ओके, ठीक है, कल मैम, मैंने आपने अटेंड की थी आपने इसलिए आपने पता नहीं लगा। देखा नहीं है वो वीडियो? नहीं हाँ देखा जी ना? मैम, थोड़ा सा बिजी था, वो मौका ही नहीं लगा, मैंने क्लास में नहीं अटेंड की थी कल की, हाँ, आज देख लेना, इसीलिए। इट विल मेक इट वेरी क्लियर। ओके, ओके ओके तो मैम। आपके इंद्रूप सर है ना, आप ऑफलाइन स्टूडेंट हो जसलीन? हाँ जी मैम, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट ही है। हाँ, आपके जो सर है ना वो सुपर जीनियस, ही हैज मैम, मेड वो थिंग्स सो तो इजी एंड सिंपल। वो तो सच्ची, वो तो सुपरमैन है आइल्स के। सच्ची, वो बहुत मैम, ज्यादा मैं ही हूँ स्टूडेंट, हाँ मैं हूँ स्टूडेंट इंद्रूप सर का। हाँ, इंद्रूप सर के स्टूडेंट सारे उसके फैंस हैं, सारे स्टूडेंट्स। ये तो है मैम। मुझे पहले कहता है मैं आपकी क्लास ले लूं आज, मैं कहा ले लाइन ग्राफ कराना है। कहता वो तो आप भी बहुत अच्छा करा लोगे। मैं कहा अच्छा तेरे को डाउट है, मैं और कुछ अच्छा नहीं कराऊंगी? कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, बट चलो। सो see you tomorrow at 11 AM. We'll be doing the third passage of the reading 54. Okay, ओके मैम। which I've already shared with you, right? Chalo, bye. ओके, थैंक यू। Bye. Thank